Hello students, good evening. I'm your physics teacher Vikal, and today we are going to start very important topic in thermodynamics, which is thermodynamic processes. Okay, thermodynamic processes. So as I told you in last class, like specific heat is dependent on nature of substance and the process by which heat is added to the system. Okay, so here we are going to see those processes, but like we are going to see some several processes, like some limited processes, but there are n number of processes possible through which we can add heat to the system. Okay, or we can do, or we can like or gas can do work through those n number of processes. Okay, so let's start. First is quasi-static process. First we have to understand what is quasi. Quasi means almost. Quasi means almost. Almost static. Almost static process. Static means what? Static means at equilibrium. At equilibrium. Okay, that means in this process, system will be in almost equilibrium state. Quasi-static process. Okay, we just have broken this quasi-static, both words. Okay, so what is the meaning of quasi? Quasi means almost. Static means like it will be at rest. Static means at rest. Rest means here in thermodynamic rest का meaning क्या होता है? System will be system will be at equilibrium, thermal equilibrium. Okay, so almost at equilibrium. System is in almost equilibrium. Now, why is it important? This process is important. Why? Because to define the state of system, system needs to be in equilibrium. As we have discussed in our first class when we were studying like zeroth law of thermodynamics and thermal equilibrium, at that time also I told you like why thermal equilibrium is important, because to define the state of the system, system should be in equilibrium. Good evening Pooja, good evening. System should be in equilibrium. Why? Because we want to define the state of the system. And what is state? State क्या होती है? State मतलब like if a system of gas is there, like in a container we have put some gas, okay, and if you want to define the state of that gas, how will you define? Like there will be some fixed pressure of that gas, there will be some fixed temperature of that gas, and there will be some fixed volume of that gas. Good evening Akanksha, good evening. Okay, so why equilibrium is important? Because we want to define the state of the system. So that's why we are defining quasi-static process. So in our thermodynamics, mostly process which we are going to discuss, like after this slide we are going to discuss all the processes. So mostly, or we can say almost all the process we take as quasi-static. Quasi-static, why? Because like you have seen some graphs on PV diagram or VT diagram, or like PV, VT, or one more diagram we can draw.
like that will be PT diagram. Okay, so if we want to draw PV diagram, like initially pressure of gas was P1 and volume of gas was V1. Good evening, good evening, Ankita. Okay, so if we are going to like heat the gas through any process, from P1 to, if we will change the pressure of the gas as P2 and volume of the gas as V2. So if we are drawing this graph like this line, from this point to, from initial position to final position, initial state to final state, so in between you can see, हाँ अभी मैं समझा रहा हूँ, रुको, in between you can see we are drawing this line. That means at this point we can define there will be some pressure of this gas and there will be some volume of this gas. At this point also we can define there will be some pressure of this gas and volume of this gas. At this point also we can define there will be some pressure of the gas and there will be some volume of the gas. Like we can give the value, like here pressure can be like 2 kilopascal, 3 kilopascal, like there will be some fixed value. Why? Because at this point also system is in equilibrium. That's why we can draw this line. If system is not in equilibrium, we can't give state of the system. Good evening, Ayat. वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, आप अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए, यूट्यूब में अपना वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कीजिए. ओके, ठीक है. अब एक चीज और दिखाता हूं मैं. अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या होगा? आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. लाइक यू कैन सी, this is a container. Here vacuum is there and here some gas is filled. Okay, now see, this gas is in equilibrium. At this time this gas is in equilibrium. So this gas will have some volume, some temperature, some pressure. Okay, now if suddenly I will remove this wall, then what will happen? गैसेस, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको पता चलेगा एकदम से वॉल हट गई है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं. तो क्या होगा? वो गैसेस मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट टू फिल दैट वैक्यूम. इस साइड में भागना स्टार्ट करेंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स. ओके, तो जब तक वो गैसेस मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर को पूरी तरह ऑक्यूपाई नहीं कर लेते, उस स्टेट को बोलेंगे हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट. और उस स्टेट में हम लोग उस गैस का कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं बता सकते, कोई फिक्स्ड प्रेशर नहीं बता सकते और कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं बता सकते. अंडरस्टूड? हम लोग जब गैस पूरी तरह फिल नहीं किया है इस स्पेस को, तब तक कोई वॉल्यूम डिफाइन नहीं है गैस का, कोई प्रेशर डिफाइंड नहीं है गैस का, कोई टेम्परेचर डिफाइंड नहीं है गैस का. समझ रहे हो? तो उस टाइम पे मतलब गैस इक्विलिब्रियम में नहीं है. जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये क्या है? यही तो है हमारे स्टेट वेरिएबल्स. इन्हीं की वजह से तो हम लोग गैस की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं. समझ आ रहा है? तो जब गैस पूरी तरह फिल ही नहीं किया इस कंटेनर को, थोड़ी बहुत इधर चलना स्टार्ट किए, मॉलिक्यूल्स भरना स्टार्ट कर रहे हैं, गैस पूरी तरह फिल ही नहीं की है, तो हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते. मतलब इस टाइम पे गैस इज नॉट एट इक्विलिब्रियम. ओके, तो अब समझे कि इक्विलिब्रियम की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है. अगर गैस इक्विलिब्रियम में होगी, अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो हम उसका प्रेशर, उसकी वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हैं. हम लोग बता सकते हैं उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है. और उसी वजह से हम लोग कोई भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ और प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाई इक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट. समझ में आया? अब देखो, ट्रांजिएंट स्टेट के बाद कुछ देर बाद क्या होगा? ये गैस पूरी तरह से इस कंटेनर को फिल कर देगी और तब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसका कुछ वॉल्यूम होगा 2V, इसका कुछ प्रेशर होगा P डैश, इसका कुछ टेम्परेचर होगा T डैश. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड.
दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम स्टेट इज इंपॉर्टेंट। और इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी जो होती है वो प्रैक्टिकली इतना इतना पॉसिबल नहीं होती अचीव करना, इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, मतलब ऑलमोस्ट स्टैटिक। ऑलमोस्ट स्टैटिक मींस ऑलमोस्ट एट इक्विलिब्रियम, पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में नहीं होगा बट ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है। तो इसका मतलब एक और बार एक फिजिकली मैं समझा देता हूं, देखो फिजिकली समझा देता हूं। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है हमारे पास, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, दिस इज अ पिस्टन एंड दिस इज सिलेंडर, इन दिस सिलेंडर सम गैस इज फिल्ड। अब देखो, अगर मैं ऊपर से एक चावल का दाना इस पे डालूंगा, छोटा सा एक चावल का दाना डालता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, उसके वेट की वजह से पिस्टन हल्का सा नीचे जाएगा। ठीक है। अब हल्का सा नीचे जाएगा तो क्या होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर पड़ेगा। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर पड़ेगा तो गैसेस मॉलिक्यूल्स उसको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। तो एकदम से वो नीचे नहीं जाएगा, हल्का सा नीचे जाएगा और रुक जाएगा। अब एक और मैंने उस पर चावल का दाना डाला तो फिर से नीचे जाएगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर पड़ेगा और फिर ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, वो पिस्टन हल्का सा नीचे जाएगा और रुक जाएगा। क्यों, कि गैसेस भी उस पर प्रेशर लगाएंगे नीचे से। ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पिस्टन मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन 0 है, और हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेस्ट पे है। ऑलमोस्ट रेस्ट का मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। समझ में आया। अगर एकदम से इस पे कोई बड़ा सा पत्थर डाल देंगे, इस पिस्टन पे क्या करेंगे, बड़ा सा पत्थर डाल देंगे तो क्या होगा, बहुत तेज नीचे जाए, जो पिस्टन होगा बहुत जोर से, मतलब बहुत तेज स्पीड से नीचे जाएगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा उसके पास। ठीक है। तो उस स्पीड से नीचे जाएगा तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइम पे उसका कोई प्रेशर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, उस टाइम पे उसका कोई टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर सकते, कोई वॉल्यूम डिफाइन नहीं कर सकते गैस का। तो मतलब उस टाइम पे जो गैस होगी वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द इक्विलिब्रियम। लाइक इफ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम तो हम लोग उसकी स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं, और वही तो इंपॉर्टेंट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स में। समझ आया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस। Isocoric process is what? Isocoric process means constant volume process. Constant volume process मतलब इस प्रोसेस में जो वॉल्यूम होगा हमारा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो वॉल्यूम इज, और हम लोग कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम इज 0, डीवी इज 0। अब देखो, फॉर एन आइडियल गैस, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में सारी गैस को आइडियल मानते हैं। ठीक है। सो फॉर एन आइडियल गैस हम लोग जानते हैं क्या इक्वेशन होती है, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, pressure into volume is equal to number of moles into universal gas constant into temperature। ठीक है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होंगे, आर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, बोल सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो बचा क्या, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। ये बोल सकते हैं हम लोग। चलो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वर्क का फॉर्मूला होता है स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डीवी, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। जैसा कि हम लोग जानते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस मींस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम मींस dv is equals to 0, put here dv equals to 0, तो वर्क डन क्या आया, वर्क डन आ गया 0। ठीक है। सो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लगाएंगे इस प्रोसेस के लिए, वी विल यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। तो यहाँ पर w इज 0, dw इज 0, दैट मीन्स
whatever heat we will give in isochoric process, that much heat will convert into only change in internal energy. ठीक है? I hope all of you understood. In isochoric process, whatever heat we will give, that will convert into change in internal energy. That's it. There will be no work done. ठीक है? आइसोकोरिक प्रोसेस को हम लोग पहचानेंगे कैसे? क्वेश्चन में जब दिया रहेगा तो कैसे पहचानेंगे? They will give you rigid container like this. Okay, rigid container means container का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है. That means that process is isochoric process. Okay, one more thing. As we know, pressure, how to identify that process given in the problem in question is isochoric. तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि a rigid oxygen gas is filled in a rigid container. After that some heat is given to that gas, like that they will give you in question. Okay, so rigid container means that container is fixed, containers walls are fixed. That means containers volume will not change. Volume not change, that means process is isochoric process. ठीक है, इतना समझ आया? चलो अब प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ इसका ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो देखो, if as we know volume is constant, that means if we will increase the pressure, volume will not change. So we will get a line like this. That means volume is fixed, volume is not changing, but pressure can increase. So if we will increase the pressure, volume will not change. So we will get graph like this. Yes, ठीक है. So this will be PV diagram. One more thing you can understand. Here you can see work done was dW equals to PdV. If you want find W equals to integration of PdV. ठीक है. This is the formula of work done by gas. अब देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का मीन्स होता है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, सो एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम विल गिव यू व्हाट? वर्क डन. अब देखो यहाँ पे, इज देयर एनी एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम? नो. हियर यू कैन सी ओनली स्ट्रेट लाइन इज देयर, सो देयर इज नो एरिया अंडर द कर्व. दैट मीन्स देयर इज नो वर्क डन. Okay, so simply if you know how to draw the diagram of PV, like pressure and volume, okay, so by if in question PV diagram is given, so simply PV diagram को देख के ही area निकाल सकते हो और work done निकाल सकते हो. ठीक है, I hope all of you understood. चलो, so in isochoric process work done is 0. चलो, next is isobaric process. Isobaric process means constant pressure process. Constant pressure मतलब P will be constant, or we can say dP change in pressure will be 0. ठीक है. चलो, अब इसके लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं. तो PV इक्वल्स टू म्यू आर टी. तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है. तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, ये रिलेशन आ गया हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में. ठीक है. चलो, अब हम लोग निकालते हैं वर्क डन. तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, dW इक्वल्स टू PdV. तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV. कहां से कहां तक का? इफ वॉल्यूम इज चेंजिंग, वॉल्यूम चेंज होगा, आराम से होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है ओनली, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो इफ वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम इनिशियल VI टू VF, तो आफ्टर इंटीग्रेशन, देखो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर ले लेंगे हम इंटीग्रेशन साइन से. तो ये हो जाएगा P इंटीग्रेशन ऑफ dV फ्रॉम VI टू VF. मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? V. ओके, तो V एंड V पे लिमिट लगाएंगे VI टू VF, तो उसका वो क्या हो जाएगा हमारा? VF माइनस VI. ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं P डेल्टा V, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, एंड दिस विल बी वर्क डन इन द आइसोबारिक प्रोसेस. ठीक है, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं हम लोग. कैसे लिख सकते हैं?
PVF माइनस PVI, एंड PVF हम लोग लिख सकते हैं कैसे, म्यू आर टी एफ, जैसे कि हम जानते हैं PV इक्वल टू म्यू आर टी, तो PVF इक्वल टू व्हाट, म्यू आर टी एफ, ठीक है। एंड इसको लिख सकते हैं हम लोग, PVI को कैसे लिख सकते हैं, म्यू आर टी एफ, सॉरी टी आई, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू आर टी आई। अब म्यू आर को ले लो कॉमन, तो टी एफ माइनस टी आई रह जाएगा अंदर, म्यू आर को लिया कॉमन, तो अंदर रह जाएगा टी एफ माइनस टी आई। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, म्यू आर डेल्टा टी। तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए वर्क डन के दो फॉर्मूला आ गए इन आइसोबैरिक प्रोसेस, एक ये हो गया म्यू आर डेल्टा टी और एक ये हो गया पी डेल्टा वी। ठीक है, हम लोग को याद रखने की क्या जरूरत है, एक फॉर्मूला याद रख लो पी डेल्टा वी, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं म्यू आर डेल्टा टी में भी, ठीक है। तो in isobaric process, or we can say in constant pressure process, work done by the gas will be P delta V, pressure into change in volume, ठीक है, और mu r delta T, ठीक है। I hope all of you understood। चलो, PV को nRT बोल सकते हैं, बट यहाँ पे P डेल्टा V है ना, चेंज इन वॉल्यूम, इसलिए हम लोग यहाँ पे nRT नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे nr डेल्टा T लिख रहे हैं। हम लोग डिराइव किया सीधा सीधा, देखो ना, ठीक है। चलो, अब हम लोग बनाते हैं इसका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम। देखो, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम हमारा बढ़ सकता है घट सकता है, ठीक है। सो वॉल्यूम कैन इंक्रीज और डिक्रीज, बट प्रेशर विल बी कांस्टेंट, pressure will be some constant value P naught, we can say, okay। So here you can see there is some area under this curve, you can see area under this curve, like this is VI and this is VF. So if you will find this area, you will get work, find the area, okay, find the area. So what will be area, area will be this side is what, P naught, and this side will be what, VF minus VI, VF minus VI, and this is what, this is equals to P naught into delta V, and this is the work done। तो वर्क डन चाहे हम लोग फॉर्मूला से निकालो, चाहे एरिया अंडर द कर्व से निकालो, वर्क डन विल बी सेम, ठीक है। इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू नो पीवी डायग्राम फॉर ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है। सो पीवी डायग्राम फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस विल बी लाइक दिस, ओके। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। Next is isothermal process। Isothermal process, isothermal means constant temperature process, constant temperature process, ठीक है। चलो, constant temperature process means temperature will be constant, or we can say dt will be 0, ठीक है। अब इसकी हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, इस प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं। सो पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, म्यू इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो सिंपली वी कैन राइट पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वी कैन राइट P equals to constant divided by volume, or we can write as P is inversely proportional to volume, ठीक है। P is inversely proportional to volume। अब अगर हम लोग PV डायग्राम इसका बनाएंगे, तो इसका जो PV डायग्राम होगा वो होगा, if P is inversely proportional to volume, तो in that case that diagram will be as like a rectangular hyperbola। So simply हम लोग को याद रखना है, कुछ इस टाइप का कर्व होगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। PV diagram, PV curve will be like this, you can see if volume is increasing, you can see if volume is increasing, pressure is decreasing, if volume is increasing, pressure is decreasing, or you can say if volume is decreasing, pressure is increasing, ठीक है। moles, number of moles is constant, if in a gas container we have some gas and that amount is fixed, we are not increasing the amount of gas, okay, so number of moles will be constant, number of moles will be constant,
we have to take like some amount of gas and we are not increasing or decreasing that amount. Simple, that will be constant. ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का, सॉरी, पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. नाउ वी विल फाइंड वर्क डन. ओके, सो वर्क डन. dw equals to work done is what? pdv. So we can write w equals to integration of pdv. अब हम लोग p को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रेशर यहाँ पे चेंज हो रहा है. यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा है? सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग. ठीक है, तो प्रेशर को हम लोग वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं. कैसे? pv equals to constant. pv equals to constant, so simply we can write what? Here हम लोग लिख सकते हैं p equals to constant divide by volume. ठीक है, c divide by volume. सिंपल लिख दो यहाँ पे, प्रेशर की जगह लिख दो c by v. ठीक है, एंड c will come outside because it is constant. ठीक है, तो c इंटीग्रेशन ऑफ dv by v. सिंपल, प्रेशर की जगह हमने क्या लिख दिया? c by v. ठीक है, तो c बाहर आ गया, v इधर रह गया. ठीक है, 1 by v इधर रह गया. अब इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम vi to vf, vi to vf इंटीग्रेट करो. देखो हम लोग जानते हैं 1 by v का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log v, ln v. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा ln v, लिमिट फ्रॉम vi to vf. अब पुट करो लिमिट्स, लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? c ln vf माइनस v, सॉरी ln vi. wait a minute, it will be ln vi. okay, अब in subtraction of log, if you will subtract log vf minus log vi, it will become log vf divided by vi. ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा c ln vf divided by vi. okay, and what is c? c is mu rt. c is mu rt. pv equals to constant, and what is that constant? Mu rt. ठीक है, तो simple, w equals to mu rt ln vf divided by vi. Simple. This is the work done. Work done in isothermal process. Okay, I hope all of you understood. So remember this formula. Okay, some other formula also we can find. How? Okay, in the question if volume is given, you can use this formula. If in the question pressure is given, final pressure, initial pressure, so simple, we know pressure is inversely proportional to volume, or we can say volume is inversely proportional to pressure. तो यहां से हम लोग एक रेशियो निकाल सकते हैं. कैसे? pf by pi is equals to vi upon vf, or vf by vi equals to pi upon pf. So simple, formula will change like mu rt ln pi upon pf. This is another formula of work done. If in the question pressure is given, so simply use this formula. If in question volume is given, simply use this formula. Simple. If in question temperature is not given, then what will you do? So see, PV equals to constant. So we can write PV as like this. We can write as P1 V1 is equals to P2 V2, or PI VI is equals to PF VF is equals to constant. Like that we can write. If PV is constant, we can write like this. Okay. So in place of mu RT, we can write like pi vi ln vf by vi, or pf vf ln vf by vi. Simple. You have to remember only one formula, this, and another formula you can easily derive if you know this, like ideal gas equation for all the process. Like for isothermal process, ideal gas equation is PV equals to mu RT, or PV equals to constant, because temperature is constant, R is constant, mu is constant. ठीक है, तो remember this, only this formula. Other formula you can easily derive. No need to remember all the formula. वैसे ही इतना वजन हमारे सर पे, दिमाग में इतना कुछ याद करने के लिए, तो क्यों फालतू में पढ़ाना. सिंपल, रिमेंबर दिस ओनली वन फॉर्मूला, म्यू आर टी ln vf by vi. सिंपल. ठीक है, चलो, ग्राफ समझ आया, वर्क डन समझ आया, बस चलो. नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है,
एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या खासियत है? एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग का जो हीट चेंज होता है, हीट एक्सचेंज होता है सिस्टम के साथ, वो होता है जीरो. dq is zero. That means system will not accept any heat or reject any heat. Simple. There will be no heat exchange of the with the system. ठीक है, सिस्टम ना ही कोई हीट सराउंडिंग को देगा ना ही सराउंडिंग से लेगा. सिंपल. तो चेंज इन हीट dq इज इक्वल टू जीरो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, that relation between pressure and volume, that is PV to the power gamma equals to constant. Okay, and this gamma value we have seen in last class. What is gamma? Gamma is a ratio of Cp by Cv. Cp is what? Molar specific heat at constant pressure, and Cv is what? Molar specific heat at constant volume. ठीक है, so for different gases gamma value will be different. In the question they will give you. ठीक है, चलो अब इसका वर्क डन निकालते हैं हम लोग. इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा थोड़ा सा लेंदी है इसका जो डेरिवेशन है वर्क डन का, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा. चलो, तो PV to the power gamma equals to constant. So from here we can write P equals to what? Constant divided by V to the power gamma. ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, PI VI to the power gamma equals to PF VF to the power gamma equals to constant. इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग इसको. ठीक है, चलो अब वर्क डन निकालते हैं. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं dW equals to what? PdV, और W equals to what? इंटीग्रेशन ऑफ दिस. P की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, P की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे. क्यों? क्योंकि हम लोग को सब कुछ चाहिए वॉल्यूम के टर्म में. तो हम लोग को सब कुछ चाहिए वॉल्यूम के टर्म में, बिकॉज वी वांट टू इंटीग्रेट इट. ठीक है, चलो प्रेशर की जो वैल्यू है इधर पुट करो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. यहाँ क्या बचेगा? dV डिवाइड बाई V टू द पावर गामा. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कांस्टेंट को C लिख दिया हमने, इसको लिख दिया हमने. इफ इसको हम लोग ऊपर लाएंगे तो कैसे बन जाएगा? V टू द पावर माइनस गामा dV. ठीक है, नाउ इसका इंटीग्रेशन करते हैं. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. क्या होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n into dx is equals to what? It is like x to the power n plus 1 divided by n plus 1. This is the formula of integration. ठीक है, चलो अब इंटीग्रेट करते हैं. C, यहाँ पे लिमिट हमारी क्या होगी? Vi to Vf. तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? V here n plus 1, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस गामा प्लस 1. Here n is what? Minus gamma, na? So minus gamma plus 1, or we can write like 1 minus gamma. ठीक है, simple. Limit will be from Vi to Vf. And divide by what? N plus 1. Here it is n is minus gamma, so minus gamma plus 1, or we can write 1 minus gamma. इतना समझ आया? इतना समझ आया? और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? C, put the limit. So if we will put limit Vf to the power 1 minus gamma minus Vi to the power 1 minus gamma divide by 1 minus gamma. ठीक है, अब चलो इस C का कुछ जुगाड़ करते हैं. इस C का कुछ जुगाड़ करते हैं. C is what? Constant is what? Pi Vi to the power gamma और Pf to the power gamma. ठीक है, चलो अब C का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे Vf में, तब हम लोग C की वैल्यू लेंगे दिस. जब हम लोग C का मल्टीप्लाई करेंगे Vf में अंदर, तो C की वैल्यू लेंगे हम लोग दिस. Here Vf is there, so Vf term we will take. ठीक है, चलो, और जब हम लोग C का मल्टीप्लाई करेंगे इधर Vi में, तो हम लोग लेंगे दिस वैल्यू. ठीक है, चलो अब लेते हैं हम लोग ये करते हैं यहाँ पे. ठीक है, चलो अब हमने C का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो क्या होगा? हमारे पास आ जाएगा Pf Vf to the power gamma and Vf to the power 1 minus gamma
ठीक है, अंदर करेंगे इसका मल्टीप्लाई तो हम लोग सी का वैल्यू लेंगे दिस पी आई वी आई टू द पावर गामा। ठीक है, चलो मत करो मल्टीप्लाई, पी आई वी आई टू द पावर गामा एंड हियर इट इज व्हाट वी आई टू द पावर 1 माइनस गामा एंड डिवाइड बाय 1 माइनस गामा। अब चलो देखो, वी एफ टू द पावर गामा multiplied by vf to the power 1 minus gamma. See, in multiplication powers are added. Add the powers gamma plus 1 minus gamma. Gamma gamma will cancel out. Remaining is what? Vf to the power 1, or simple we can say vf is remaining. Here what is remaining? Here also power will be added. So here it will be remaining only 1. ठीक है, चलो क्या बचा हमारे पास? बचा हमारे पास पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। कितना अच्छा एक्सप्रेशन आ गया देखो, पी आई वी एफ माइनस पी आई वी आई डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। इसको हम लोग और एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। पी आई वी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन, म्यू आर टी एफ, एंड इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू आर टी आई डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, म्यू आर कॉमन लिया, टी एफ माइनस टी आई विल बिकम डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। तो दो फॉर्मूला याद रखो वर्क डन का, एक ये पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, और एक ये म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, दो फॉर्मूला याद रखो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस का। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस को पहचानेंगे कैसे, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा इंसुलेटेड, that container is insulated. Insulated means there will be no heat transfer from system to surrounding and surrounding to system. ठीक है, चलो, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। और इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, पीवी डायग्राम, वो ना जो ग्राफ होता है हमारा, देखो आइसोथर्मल का कुछ इस तरह का था। तो इसका जो ये आइसोथर्मल मानो, ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्म, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। ठीक है, तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा स्टीप होता है, मतलब उसका जो ढलान है, उसका जो स्लोप है वो ज्यादा होता है आइसोथर्मल से। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एडियाबैटिक। ठीक है, ये आइसोथर्मल है, ये एडियाबैटिक है, हमेशा याद रखो, कंफ्यूज मत हो, बस इतना याद रखो, एडियाबैटिक का जो ग्राफ होगा, जो कर्व होगा पीवी डायग्राम का, वो थोड़ा सा आइसोथर्मल से ज्यादा स्टीप होगा, ज्यादा ढलान में होगा, ज्यादा स्लोप होगा उसका, बस इतना याद रखो। ठीक है, होगा वैसा ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप से ही होगा, कर्व ही होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा, बट आइसोथर्मल के कंपैरिजन में ज्यादा उसका स्लोप होगा, बस। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस नाम से ही समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड बाय नेम व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस। इफ वी हैव state of gas P1 V1, तो gas can go through several amount of processes, like this is constant volume process. ठीक है, so we are heating gas at constant volume. After that we are heating gas at constant pressure. You can see this straight line will show you constant pressure. Again we are like heat is rejected by the gas at constant volume. Here heat is rejected, and when we will take again to the same point, so here gas is rejecting heat at constant pressure. Here you can see heat is added, here also heat is added. ठीक है, here heat is rejected and here heat is rejected. ठीक है, इतना देखो यहाँ पे, तो हम लोग का क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, गैस हमारी जो स्टार्ट की थी जिस पॉइंट से, अगेन सेम पॉइंट पे वापस आ गई है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, या साइकिल, साइकिल एक तरह के साइकिल में रहेगी गैस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल साइक्लिक प्रोसेस। इफ इस फॉर दिस प्रोसेस अगर हम लोग फर्स्ट लॉ लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम लोग लगाएंगे, तो क्या होती है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ होती है डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब देखो हमारी जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही है, P1 V1 से स्टार्ट किया और दोबारा P1 V1 पे आ गए हम लोग, स्टेट चेंज नहीं हो रही है। स्टेट चेंज नहीं हो रही है मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी जीरो।
अंडरस्टूड? बिकॉज इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टेट वेरिएबल है. इट डजेंट मैटर कहां से कहां जा रहे हो, अगर सेम पॉइंट पे आ रहे हो तो मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी जीरो. सिंपल. You can see here, if pressure is increasing, simple. देखो, for ice, this is isobaric ना. For isobaric process, what was the equation? PV equals to mu RT. ठीक है. Isochoric process, when volume is constant, this is constant. ठीक है. So P equals to T, sorry, P is directly proportional to T. अब देखो, अगर हम लोग गैस को हीट दे रहे हैं इन आइसोकोरिक प्रोसेस, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है. सो हियर यू कैन सी P is increasing, that means heat is absorbed by the gas. P is increasing, pressure is increasing in isochoric process, that means temperature is increasing means heat is absorbed by the gas. Here you can see pressure is decreasing मतलब temperature decreasing means heat is rejected by the gas. Understood? चलो. So change in internal energy will be zero in the case of cyclic process. So for cyclic process, first law will change. For cyclic process, first law will become dq equals to dw. Simple. dq equals to dw. ओके. और हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर मान लो कुछ एक dq1 amount of heat is absorbed and dq2 amount of heat is rejected. ठीक है. तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं dq1 minus dq2 is equals to dw. कुछ अगर हीट ली, सिस्टम ने कुछ हीट ली और कुछ रिजेक्ट कर दी, तो बाकी कितना जो बाकी बची उसका क्या हुआ? उससे वर्क हो गया हमारा. समझ आया? सिस्टम ने कुछ हीट ली और कुछ रिजेक्ट कर दी, जो बची उसका क्या क्या यूज हुआ? बाय फर्स्ट लॉ उसका यूज हुआ वर्क टन में. ठीक है, समझ आया? तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं dq1 minus dq2 इक्वल टू dw. ओके. चलो अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस. इजी क्वेश्चंस, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी फटाक से सॉल्व करते हैं. चलो. Two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock. ठीक है. तो सिलेंडर दे रखे हैं A and B, इक्वल कैपेसिटी की मतलब वॉल्यूम सेम है, कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉपकॉक, मतलब उनके बीच में कुछ एक यू कैन से स्टॉपकॉक, मतलब एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो सकता. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. ठीक है. And B is completely evacuated, मतलब B में कुछ है ही नहीं. B is completely evacuated. There is vacuum in the B. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The processes. अब देखो, जैसा कि मैंने बताया था, एकदम से स्टॉपकॉक को ओपन कर दोगे, गैस फटाक से दूसरे कंटेनर में जाना स्टार्ट कर देगी. गैस will start to rush into second container, in container B. Then what will happen? We can't define. There will be no fixed pressure, there will be no fixed temperature, there will be no fixed volume. तो फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं है, आइसोथर्मल तो गलत हो गया. फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, आइसोकोरिक गलत हो गया. फिक्स्ड प्रेशर नहीं है, आइसोबैरिक गलत हो गया. क्या दे रखा है यहाँ पे? थर्मली इंसुलेटेड. एज आई टोल्ड यू, टू आइडेंटिफाई द एडियाबैटिक प्रोसेस दे विल गिव यू थर्मली इंसुलेटेड. There will be a word in the question, thermally insulated. That means the process is adiabatic. So answer is adiabatic. ठीक है. Understood? Simple question. नीट 2020 में आया हुआ है. समझ आया? चलो. So question number 2. The volume V of a monoatomic gas. दी रखी है. ठीक है. चलो. Varies with its temperature as shown in the graph. ठीक है. चलो. Ratio of work done by gas to the heat absorbed by it. मतलब क्या पूछा है? रेशियो पूछा है इन लोगों ने, वर्क डन डिवाइड बाय हीट एब्सॉर्ब, W by Q.
ओके या इंसुलेटेड कीवर्ड। सो इन लोगों ने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है WIQ का रेशियो निकाल लेंगे। चलो, when it undergoes a change from state A to B, ठीक है, ग्राफ दे रखा है, अब इस ग्राफ को समझते हैं। we have to understand this graph. in graph everything is given, all the information is given in the graph. चलो समझते हैं। if a straight line is given like this from the origin, we can say like if volume is increasing, temperature is increasing. If volume is increasing, temperature is increasing. That means we can say volume is directly proportional to temperature. Volume is directly proportional to temperature. ठीक है। चलो, that means if volume is directly proportional to temperature, that means we have seen PV equals to mu RT. If volume is directly proportional to temperature, that means pressure is constant. We have seen an isobaric process. We have seen if pressure is constant, then volume will be directly proportional to temperature. तो हम लोग समझ गए, क्या समझ गए? This process is isobaric process. Isobaric process. ठीक है, चलो अब हम लोग जानते हैं, फर्स्ट लॉ लगा दो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। फर्स्ट लॉ लगा दो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज फर्स्ट लॉ? dq इक्वल्स टू du प्लस pdv। वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस इज pdv। ठीक है, चलो, and one more formula was there. We will not use pdv, we will use another formula, that was mu r delta t or mu r dt. This formula we will use. ठीक है, चलो, so dq equals to du plus mu r dt. अब हम लोग जानते हैं du का जो फॉर्मूला होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है f by 2 f by 2 mu r dt. This is the formula of change in internal energy. ठीक है, ये याद रखो। In kinetic theory of gases we will derive this formula, but for now you have to remember this formula. You can remember now. So what is the value of f? F value for monoatomic gases is 3, for diatomic gases 5, and for polyatomic gas is 6. Okay, so put 3 value here because it is monoatomic gas. Put 3. तो 3 value put करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 by 2 mu r dt. Mu r dt. Okay, so here what is the value of dq? dq is 3 by 2 mu r dt, and it is plus mu r dt. So finally it will become what? It will become 3 by 2 plus 1. That means it will become 5 by 2 mu r dt. 5 by 2 mu r dt. That is dq. And what is dw? Change in work, simple work done is mu r dt. Put the ratio हमको पूछा ratio w divided by q, or we can say dw by dq. What is dq? Sorry, dw is what? dw is mu r dt. Mu r dt. First law is dq equals to du plus dw, and dw is what? Mu r dt. So here mu r dt divided by 5 by 2 mu r dt. dq is 5 by 2 mu r dt. Mu r dt cancel, and here it is 2 by 5. Answer is 2 by 5. Option A. Okay, clear? I hope all of you understood. Simple. We have to just understand the graph. If you understood graph, you can understand the process, and after that you can do everything. चलो ठीक है, next it is matchmaking question. NEET 2017. Very easy. चलो देखते हैं क्या दे रखा है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। चलो पहचानते हैं। सिंपल पीवी डायग्राम पे हम लोग क्या बनाएंगे? देखो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इट विल बी लाइक दिस। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इट विल बी लाइक दिस, ग्राफ विल बी लाइक दिस। कांस्टेंट प्रेशर है, ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब बच्चा हमारे पास आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक।
as I told you, isothermal will be like this, then adiabatic will be like this, more steeper than isothermal. ठीक है, अब तो सिंपली पहचान सकते हो, सिंपली पहचान सकते हो कैसे? देखो प्रोसेस वन क्या दे रखा है हमारे पास, प्रोसेस वन ऐसा है, देखो स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। तो ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, ठीक है। तो ये हमारे पास आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। सो फर्स्ट इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मिला दो। सेकंड, सेकंड you can see this is what, this is adiabatic, this is adiabatic. So second will be adiabatic, second is adiabatic. Third is what, this is isothermal, temperature is constant for this curve, you can see it is 500 Kelvin, isothermal. So third is isothermal. And fourth is what, fourth this is this horizontal line means isobaric, isobaric. So fourth will be isobaric, simple. 1C, or you can say PC, okay. QA, option A is correct. Understood? Clear? चलो सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसमें, an ideal gas is compressed to half its initial volume by means of several processes, ठीक है। which of the process results in maximum work done, मैक्सिमम वर्क डन निकालना है हम लोग को। चलो पीवी डायग्राम बना लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा मैक्सिमम वर्क डन। फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला, जस्ट ड्रॉ पीवी डायग्राम। इनिशियली वॉल्यूम इज V naught and compression, after compression volume is V naught by 2। चलो अब डिफरेंट प्रोसेस से हम लोग कंप्रेशन देखेंगे। लेट्स सी। सो इनिशियली वॉल्यूम इज V naught। Now for constant pressure process, it will be like straight line, for constant volume process it will be like what, straight line like this, ठीक है। अब देखते हैं for constant temperature process, curve will be like this, and for constant, so for adiabatic process, wait a minute, you can see here, as I told you, the graph of adiabatic will always have more slope than isothermal. Wait a minute, I'll just redraw these two. One graph will be like this and one curve will be like this. Which is more steeper? This one is more steeper, that means it will be adiabatic. More steeper means more slope, जिसकी ज्यादा ढलान मतलब adiabatic, कम ढलान means isothermal, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्या, आइसोबैरिक, एंड ये हमारा क्या हो गया, आइसोकोरिक। अब सिंपल देखो, किस ग्राफ के लिए, किस कर्व के लिए एरिया अंडर द कर्व सबसे ज्यादा है। देखो इसके लिए तो छोटा सा है, ये है किसके लिए, आइसोबारिक के लिए। आइसोथर्मल के लिए इतना और ऐड हो गया, बट अगर देखोगे ये इसके लिए, इसको अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करोगे तो इसके लिए सबसे ज्यादा एरिया है, किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए। और आइसोकोरिक के लिए तो कोई एरिया ही नहीं है, तो मतलब एडियाबेटिक के लिए सबसे ज्यादा एरिया है, तो एडियाबेटिक के लिए ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क डन होगा। आई होप ऑल ऑफ यू understood how work done for adiabatic is maximum. Just see the area under the curve. First you have to draw the graph for all the process. For isobaric, constant pressure, ठीक है। For isothermal it will be like this. For adiabatic will have more slope, simple. If more slope will be there, more area under the curve will be there. So adiabatic के लिए सबसे ज्यादा वर्क डन होगा इस कंप्रेशन में, जब वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम V0 to V0/2, ठीक है। चलो